TRP. The TRP Show. TRP. Welcome to the TRP Show, your one-stop destination where you get up close and personal with your favorite celeb stars, जिनकी चीजें, जिनका काम आप बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हैं, and you have kind of gotten attached to them, their lives, and you totally want to know कि क्या है, क्या जिंदगी में चला, कहाँ से शुरुआत की, क्या की. Sometimes आपको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी probably has been a bed of roses, अरे बड़े प्यार से मिल गया, सब कुछ हो गया. बट हर किसी की अपनी कहानी होती है. किसी की कहानी में मे बी स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि जिनकी अपनी कहानी नहीं होती. So here on my show we try to find out that little कहानी which when you hear maybe you get inspired and feel a little more closer to your favorite celeb. Right now with me, someone who's been a heartthrob on television, films and many other platforms for the longest. Jalandhar the Munda, Mumbai mein karta hua. The very talented, extremely down to earth that I can totally vouch for. And the guy who's been entertaining us for the longest, none other than Karan Kundra. Welcome to the TRP Show, Karan. Thank you so much, Akriti. It's such a sweet thing to have, for you have to have done. मेरे बारे में इतनी अच्छी चीजें सुन रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much. मैं बार-बार आऊंगा इस शो पे. Oh wow, that's sweet. And somebody who is in the same profession also, somebody who is he's been an anchor, host, and so many other things. नहीं. I think गलतियाँ करके अभी recently I was doing a live with somebody और वो मेरा नाम भूल गई. तो वो मतलब दिल्ली की थी, वो भी रेडियो पे ही है. एंड तो उन्होंने ऐसे बोला, और कुणाल कुंद्रा आपका क्या हाल है? तो मैंने भी उनका नाम चेंज करके, और चित्रांगदा क्या हाल है? See the comebacks, बताओ. और क्या, बेचारी, उसको मैंने बहुत तंग किया. But it was a lot of fun. I don't get offended as such. तो फिर अगर offend करना हो तो कर ले, कोई इशू नहीं है. नहीं, अब you get it also ना कि हो जाता है कभी कभी. हाँ 100%. जलंधर में कब तक थे आप? मतलब you basically your roots are from Jalandhar, but वहाँ कब तक थे? What was life like there? Were you born, brought up, your 10th, 12th sub Jalandhar? Yeah, so my dad was in the Air Force, and my mum, she was studying to be a medical practitioner in Mumbai way back in the 70s. So my mum is a Malayali and my dad is a full Punjabi. और एयर फोर्स में थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे थी उस टाइम पे. उनको मॉम मिल गई, उनको पसंद आ गई. और दे फेल इन लव. बहुत पंगे हुए, बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मारपीट हुई. उसके बाद फिर फाइनली मॉम एंड डैड गॉट मैरिड. सो मेरी जो पहली 3 बहनें हैं वो तीनों बॉम्बे में ही पैदा हुई थी. Then Bombay. Or by the time I was supposed to be born, my dad and my mom, they had shifted to Punjab. So my 3 sisters have been born and raised in Mumbai, but I have, I have had a very different upbringing. I was in Punjab. I was studying in Rajasthan in Mayo College, Ajmer, and I did my college from Punjab. So you can say full Palya Badya Punjab da Munda hai. And just so happened that I was in my 23rd year, or I remember 24th year of my life, and Ekta Kapoor, she saw me on Facebook, and that time she was casting for something, and काफी देर हो चुकी थी, उनको कुछ मिल नहीं रहा था. And I posted a picture on Facebook and I had sent her a friend request, Amy वेले बैठे, और उसमें ना मेरी आंखें बहुत इंटेंस लग रही थी. तो she was looking for somebody who's that intense. I want to know this more. मुझे ये थोड़ा लंबे में जानना है. मतलब वेले बैठे लाइक ऐसे ही बैठे लाइक जनरली कुछ नहीं है तो एकता कपूर को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज देते हैं. हाँ, क्योंकि वो 2008 का मेल्टडाउन हो चुका था वहां पे. सो प्रॉपर्टी के काम गिर चुके थे. रिसेशन आया हुआ था. हम लोग भी बैठे हुए थे कि रिसेशन में करना क्या. पंजाब में तो वैसे भी हम लोग बड़े खुश रहते हैं. तो so it was quite a dramatic story. We'll dwell into it later, I guess. Then that's how it started, and I had come to Mumbai in 2008 for Mr. India. और वो भी एमी कि यार कुछ करना है लाइफ में टाइप. तो उसी की पिक्चर्स वगैरह थी. तो आई थिंक एक टाइम हमको लगा था कि शायद मैं बॉम्बे में ही हूँ और मैं यहीं पे एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस से कॉल वॉल करवाई
हाँ. और मैं आ गया फ्लाइट पकड़ के one of these days, और then I met her and she's like कि भाई ये करना है. मैंने कहा मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं. कहती कुछ हमारे ऊपर भी छोड़ दो. So I was like ठीक है, करते हैं. I never, it was a complete 360 degree जिसको बोलते हैं ना, ऐसा U-turn मारा मेरी लाइफ ने 2008 के एंड में, and 2009 January I was on air. Wow. I mean, but कहीं पे मतलब you know back in mind ये एक्टिंग में जाना है. Of course you might be getting compliments and all, तो दोस्तों यारों में तो चलता होगा ही for sure. बोलते होंगे कि अरे नहीं, ये पंजाब के दोस्त यार ना थोड़े अलग टाइप के होते हैं. वो तो बेइज्जती ही करते हैं. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. But no, I never thought about it. कभी सोचा नहीं था. कभी you know, I mean of course you know you see all these Bollywood stars and you know you see their lives and you're like wow man, this is so cool. But I was in the IT business, I was in the construction business. मेरा तो बिल्कुल था ही नहीं इस तरफ कुछ भी झुकाव. In fact, I was 108 kgs in 2007. You know, मैं बहुत क्योंकि मैं अपना IT business खड़ा कर रहा था उस टाइम पे. I was traveling back and forth. और you know रात पूरी, क्योंकि अमेरिका का काम था. It was a BPO that I had started. और तो सारी रात जागना पड़ता था. तो जंक फूड खाते रहते थे. You know, I was on the computer 24/7 and I was just sitting. So sudden वो भी it was you know, and then suddenly one day I realized कि यार ये तो क्या सीन हो गया मेरे साथ. और उस टाइम पे ना एक वहाँ पे I think कोई फेसबुक पे पोस्ट थी या कुछ तो था वहाँ पे, वो ग्रासिम मिस्टर इंडिया का कुछ लिखा हुआ था. So then I was like यार अगर ये करूंगा ना तो फिर मैं मतलब कुछ अच्छा है, like let's do something crazy, let's do something wacky. So I got in touch with a photographer called Rahul Datta in Delhi. He's a good friend of mine now. तो मैं गया उनको मिलने 6 घंटे ड्राइव करके, और उन्होंने मेरी शक्ल देखी. उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं करूंगा देखो क्लिक, मेरी रेपुटेशन मेरे की क्या हाल बना रखा है. So he turned me down. He said तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू टाइम मत वेस्ट कर, तू प्लीज. मैंने कहा मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, मुझे मिस्टर इंडिया करना है और मुझे उसके लिए पिक्चर्स चाहिए. So he's like बेटा जाओ घर और 25 किलो कम करके लाओ. What a confidence का मानना पड़ेगा. हाँ, और मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूंगा. सो I went back to Punjab and I was like चल ठीक है यार, ये काम तो ऑटो पायलट पे है. And my dad was in the US at that time. मैं उनका काम देख रहा था. And then I just started, you know, I went on a regime of heavy workouts and this and that, and I lost some 25-30. I became 75 kgs from 108 or 107 kgs, I think. और मैं गया राहुल के पास वापस, and he's like हाँ अब मैं तेरे को शूट करूंगा. And then he clicked some nice pictures and I sent it to the Mr. India guys, and they said that you know, so you can come in you know, when we are doing this Punjab auditions Chandigarh में होंगे तो तुम आ जाना. So I went and I spoke and I was like, dude, I'm not into modeling, I'm not into acting, I'm a business person. This is what I've achieved, this is what I've done. I've been working since 16 and I think that Mr. India stands for all of that, because आपकी वेबसाइट पे तो यही सब लिखा हुआ ना, मतलब मैगजीन में भी ये सब लिखा हुआ. वेबसाइट पे लिखा हुआ. हाँ मतलब वही ऐसी होता है ना, आप you are celebrating you know men and you know successful men or hard working men, inspirational men. मैं कहा मैं हूँ ना inspirational, मेरे को लो. So yeah, they also got very amused by me and they said, okay, welcome on board. And that happened and I made a couple of friends in Mumbai, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे और 1-2 महीना रहना पड़ता है ना, यहाँ पे ग्रूमिंग होती है, सब कुछ होता है. उन्होंने मेरे को मिस्टर स्टाइल स्टेटमेंट जिता दिया. I was in the top 5 but I didn't win the pageant. But पंजाब में मैं मतलब अपने शहर में मैं ऐसे छोटा मोटा एक स्टार बन गया. अखबार में फोटो आ गई कि भैया पंजाब से जलंधर से कोई गया मिस्टर इंडिया के लिए और जीत जात क्या है कुछ ना कुछ. एंड फिर वो होता है ना कि आपको सारे वहाँ पे जो होते हैं चंडीगढ़ से, लुधियाना से, जो लोकल यू नो दीज फोटोग्राफर्स, दे वांट टू स्टार्ट वर्किंग विद यू. तो मैं भी वेला बैठा हुआ था, काम तो था नहीं कुछ, तो मैं कर लेते हैं. सो इन वन ऑफ दोज यू नो, वहाँ पे एक नूर महल करके जगह है, वहाँ पे ना बहुत पुरानी एक सराय है, यू नो 300-400 years old. तो वहाँ पे जाके ना हम लोग कुछ शूट वूट कर रहे थे. तो वो वाली पिक्चर आई थिंक एक तो मैम ने देख ली फेसबुक पे और उनको पसंद आई लुक और उन्होंने बोला कि आ जा, और मैं आ गया. करण कुंद्रा जलंधर से अपना रास्ता बनाते हुए मुंबई लैंडेड इन एन एकता कपूर टीवी शो व्हिच एंडेड अप बीइंग अ ह्यूज हिट. वाओ. आई थिंक मैं अपना रास्ता उस टाइम पे नहीं बना रहा था.
ये रास्ता खुद बन गया मेरे लिए. एटलीस्ट दिस बिगिनिंग वाज लाइक दैट. आई वोंट से कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था या मैं बहुत आई रियली वांटेड दिस. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो बने थे उस टाइम पे मिस्टर इंडिया के लिए, वो हमें बताते थे कि यू नो देयर आर ऑडिशंस दैट हैपन. वी डू 5-6 ऑडिशंस अ डे एंड इट्स बीन लाइक दैट फॉर ऑलमोस्ट 300 days and nothing's happened and this and that. So I was very I wasn't like, yeah, so I knew that this is not my cup of tea because, you know, I'm super, you know, busy with what I'm doing. I think it just, you know, लिखा होता है ना, लकीरों में लिखा होता है, तो वो तो होना ही था. My parents also didn't know that I was in Mumbai and my dad's best friend from Air Force was in Mumbai. तो मैं उनके घर पे था, तो मैंने उन्हीं को बोला, मैं कहा आप ही फोन करके बताओ पापा को, मैं तो नहीं बताऊंगा, गालियां पड़ेंगी मेरे को. हम तो मुंबई में हैं, हम तो उड़ गए. उड़ गए. मेरे डैड को लग रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि वो वीकेंड में मैं चले जाता था. उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में थी, तो हम लोग चले जाते थे वीकेंड में, और बाय मंडे मॉर्निंग यूज्ड टू बी बैक इन द ऑफिस. और मैं पहुंचा नहीं इस बार, तो पापा ने सोचा कि हाँ मतलब ज्यादा पीपुल ही होगी, तो सो गया होगा, अगले दिन आ रहा होगा. शाम को उन्होंने दोबारा फोन किया, मैं फिर नहीं हूँ वहाँ पे. So then he called me, he's like, where the hell are you? Why haven't you reached back? And I'm like, Dad, ये लो ब्रोवर अंकल से बात करो. He's like, what are you doing in Bombay? So it was like that. It was fun. It was a lot of fun. I think वो एज भी वैसी होती है ना, उस टाइम पे पंगे पुंगे लेने की आदत होती है. मजा भी आता है, और रशेस तो नेक्स्ट लेवल पे चल रहे होते हैं. You just want to टक do things. It's really. हाँ, तब आपको ये लग रहा होता है ना कि आप मतलब you are the king of the world. मुंबई was easy, मतलब मुंबई easy से मेरे कहने का मतलब है, you know, हम दिल्ली या फिर जलंधर का एक बहुत अलग माहौल, अलग कल्चर, बहुत पर्सनल होता है. वो शहर बहुत पर्सनल होता है, because I also belong to Delhi. Mumbai is different that way. So, you know, coming from a place which is very different in many ways, बहुत अलग तरीके से. I hope you understand what I'm saying. How was? Yeah. No. Mumbai was very welcoming to me. Okay. Very, very welcoming. It was very different. क्योंकि यार जब मैं पहले दिन लुक टेस्ट के लिए गया ना, तो मतलब मैंने ऐसे ऊपर से नीचे तक मैं फुल डिजाइनर बन के गया हुआ था. डिजाइनर. और लोग वहाँ पे फुल हाँ मतलब पॉइंटेड शूज, यू नो डेनिम्स एंड यू नो शर्ट एंड hair done properly and you know shades, मतलब ऊपर से नीचे से 5-6 लाख का बन के गया था मैं. एंड जो बाकी के लोग हैं वो एकदम फुल ऐसे नॉर्मल चिल्ड आउट होके आ रहे हैं, और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे थे. मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी सिर्फ एंगेजमेंट है आज. So it was like you know it was a drastic change, and I really loved it because everybody was so simple here and everybody was so you know जैसे अब हम जैसे नॉर्थ में ना हम थोड़े से ओवर होते हैं, हम यू नो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं. यहाँ पे लोग बहुत सिंपल हैं. सो वो स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अजीब लगा, बिकॉज आई नेवर लिव्ड इन मुंबई. मैं आता था हॉलीडेज के लिए आता था. सो आई रियली लाइक्ड दैट. पीपल आर वेरी सिंपल, पीपल आर pretty chilled out. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी. So I think initially because I was given everything on a platter, so I was having a blast. What was that point of your career? मतलब बहुत सारे TV shows you did. कितनी मोहब्बत के बाद भी, then जरा नच के दिखा happened, बेताब दिल के तमन्ना happened, कितनी मोहब्बत 2 happened, and many. There's a long list. What was? Yeah, मैं खुद ही भूल गया हूँ मैं तो. हम बहुत अभी वो बहुत लंबी लिस्ट, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है. Touchwood. हाँ, veterans बन गए हम, veterans. You can proudly say that. But वो करियर का कोई एक मोड़ आया, because बहुत किकस्टार्ट तो बहुत किलर था यार. मतलब you know आप एकता कपूर पिक्चर आइडेंटिफाई करती है, कहती है एक्टिंग हम सिखा देंगे, डूड तू चिल कर, तू आ. बहुत मतलब टच, you know, ऊपर you know you really need to be God's child. You know, apart from that, the fact that you're talented and everything else, there must be at any point in your career when you got into a fixed situation and in a tough situation professionally, or it has been. If you see the way I take my career, I've always you know landed myself in fixes because I don't see like जैसे जब so the kickstart happened. And you know I got a very good show. It was the biggest show at that time. और you know मैंने कुछ struggle नहीं की थी, तो मुझे पता ही नहीं था. You know, so I and that thankfully touchwood overnight success बन गया था वो show, and everybody loved the show, and you know so now suddenly you're there. And you know at the peak of that time I decided कि यार अभी मुझे ये you know नहीं करने. So I took a 5-year, I think it was a 5 or a 6-year break from daily soaps. So I never stuck to one thing.
You know, उसके बाद हमने उस टाइम पे एक you know I came and did Punjabi films. Then I came back to Mumbai and I was like, चल ठीक है अभी कुछ और करते हैं. And then Vikas came up with Gumrah, which was on Channel V. Yes. तो उस टाइम पे सारे मुझे बोल रहे थे कि यार तू इतना अच्छा है. This is the time you milk the fact that you are a star on television and now you can do daily soaps for a good amount of money. And I was like नहीं मुझे वो नहीं करना है. तो I can do a गुमराह में बिल्कुल पैसे नहीं थे because it was a new concept. It was a crime show. सारे मुझे बोल रहे भाई तू crime show क्यों करेगा? ये crime show तो दूसरे एंकर्स करते हैं. crime show मतलब तू अच्छा खासा डेली सोप्स कर रहा है, जा कोई बड़ा सा डेली सोप साइन कर किसी बड़े चैनल के लिए एंड स्टार्ट मिंटिंग मनी एंड दिस एंड दैट. एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये करते हैं. एंड देन वी डिड गुमराह which was by a lot of people's definition I shouldn't have done, but again it turned out to be such a huge success because we were talking about youngsters and we were talking about psychologies and we were talking about why underage kids are committing crimes, and we went into the problems that are being faced and which were taboo things that people don't talk about, parents don't talk about. So that happened, and जब वो peak पे था तो I decided now I don't want to do that anymore. Again I landed myself in a fix. Then MTV happened. Then and when MTV was जब मेरे Roadies और Love School वगैरह सब peak पे जा रहे थे, I was doing 2 shows for MTV. Then I decided कि नहीं यार अब मुझे ये नहीं करना. So I decided that I want to be a part of Mubarka. Then 1921 happened. Yeah. And so it's always I've landed myself. So every time I become comfortable with something, I end up switching. So मेरे पंगे चलते रहते हैं. ये that even I realized कि when you were talking कि every time मतलब you complacency is something you're not cool with, no matter. I think I like challenging myself. I think life likes challenging me. Yeah. Every ऐसे मैं peak पे जा रहा होता हूँ, suddenly I'm like अच्छा ये नहीं करना. And then again I'm standing there with no work. And then I'm like यार अच्छा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा. And then I eventually end up making it successful in one way or the other. अच्छा करण, I want to know this. बहुत सारे मतलब people who have been on television, उनसे जब भी मेरी conversation हुई है तो एक चीज हमेशा रहती है कि जब आप बहुत बहुत अच्छा काम कर लेते हो टीवी पर, obviously you want to be on 70mm too. So was your and 70mm पे भी you have done some amazing character. Your last film Dolly Kitty मतलब बढ़िया जबरदस्त बहुत ही अच्छा. क्या मतलब क्या फुल फ्लेजेड फोकस था कि अब मेरे को बॉलीवुड में एंट्री मारनी? वर यू एवर पैरानॉइड अबाउट बीइंग स्टक इन टीवी, और कि वो भी फ्लो हुआ? नहीं, I don't think I was ever worried about being stuck on television because see there is एक ना hangover type होता है television actors का, including me. मैंने काम किया है यहाँ पर, मैं 11 साल से यहाँ पर हूँ. तो उनके या तो उनको बोला जाता है कि आप देयर इज एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर हमको बोला जाता है कि यही एस्पिरेशनल है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी खुद की पहचान है. इट डजंट मैटर कि आप कहाँ हो. So आज if I look back, I've done daily soaps, I've done films, I've done shows like Gumrah, I've done reality shows like Roadies and Love School, and been part of Splitsvilla. So it's about you and how you look at life. I've never looked at films as an end goal. मैंने मुबारका की है, उसमें मेरे people were very happy with what I'd done. फिर मैंने विक्रम सर के साथ 1921 की, we made it was a huge success, 32 crores we made. Then Dolly Kitty और वो चमकते सितारे happened. बुसान में उसको awards मिले हैं. So मेरा वो वाला हैंगओवर नहीं है कि मैं फिल्म्स करूंगा तो ही मैं कुछ किया है लाइफ में. अगर आप उस हैंगओवर से जाओगे तो आप जो कर रहे हो आप उसमें ध्यान नहीं दोगे. सो व्हेन आफ्टर आई डिड 1921, एक तो मैम ऑफर्ड मी शो कॉल्ड दिल्ली तो है, एंड आई थिंक आफ्टर कितनी मोहब्बत है, दैट शो हैज बिकम वन ऑफ माय मोस्ट व्यूड शोज, वन ऑफ माय मोस्ट लव्ड शोज. सो मेरे अंदर वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है. आई थिंक कि हाँ, क्योंकि मैं करण कुंद्रा हूँ और मैं मेरी अपनी एक रिस्पेक्ट है,
और मेरे अंदर वो हैंगओवर नहीं कि ये फिल्म स्टार है तो ये मेरे से बड़ा है या मेरे से बड़ी है, और ना ही जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनको भी ये है. You know, I've worked with so many. I've worked with Anil Kapoor. I've worked with Bhumi. I've worked with so many people. अभी मैं एक और फिल्म करके आया हूँ. उनको ये हैंगओवर नहीं है, तो हम लोगों को ये हैंगओवर क्यों होना चाहिए? There have been places where I have shot where I am more popular than some of the other film stars that I've worked with. You know, and I've been fortunate क्योंकि मैंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया है. मैंने कोंकणा के साथ काम किया है, मैंने रत्ना पाठक शाह मैम के साथ काम किया है, मैंने रणदीप हुड्डा के साथ काम किया है, इलियाना के साथ काम किया है, अनिल कपूर, अर्जुन. So I've worked with a lot of people. So all of these people don't have that hangover. You know, they don't have this, so why should we have it? That's such a well said thing. I'm so happy that you have said this and I hope you know that's a mentally very happy space and very secure space to be in. I think happy space बहुत important है. You know, life is not about a rat race. You know, and you know, जब मैं रोडीज पे भी होता था ना, मैं हमेशा ये चीज बोलता था कि यार देखो, जो रोडीज का विनर होगा ना, उसको 26 एपिसोड्स में से लास्ट एपिसोड के 5 मिनट का मिलेगा ना. The winner is the last winner ना, उसको 5 मिनट का एक वो मिलेगा. लेकिन वो 26 एपिसोड्स में भी तो आप जो कर रहे हो, लोगों ने तो उससे प्यार देना ना आपको. So it is always the journey and not the destination. You need to enjoy what you're doing. And अगर आप इसी चीज में, मतलब I'm not saying that to be I'm also very ambitious. अगर मैं ambitious नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता. But I have realized that you need to enjoy every step that you take. Otherwise life will become very very complicated, I guess. बड़े दुखी रहोगे अगर ऐसे जो कर रहे हो उससे परेशान रहोगे, तो ना उसका मजा ना किसी और चीज का मजा. एंड that's a very sad space to be in. And you're very right कि जब उनको हैंगओवर नहीं है तो हम इतना अच्छा काम करके इतनी सारी चीज अचीव करें, हम हैंगओवर में क्यों पड़े? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, और वो नहीं होना चाहिए. So I think आप एक आर्टिस्ट हो, और अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अगर आप ये सोचो कि मैं फिल्म में ये करूं या वेब सीरीज में ये करूं या मैं टीवी पे ये करूं, तो फिर आप you're not being true to your art. So true. So I think और मैं ना जो आया था, तो my dad has lived the best years of his life in Mumbai, and he's seen a lot of stars. He's close to a couple of big stars. तो मेरे डैड ने मुझे बोला था, बेटा तू जा तो रहा है, but enjoy it. Don't become, because he's seen a lot of people ruining themselves, ruining their family life, ruining their self-confidence. So enjoy it till it lasts, and don't worry about a lot of things. So I guess ये और दूसरी चीज की when my first show happened, I got a lot of love and बड़ा कुछ मिल गया मुझे, और मैंने उसको कंपेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ जो 2-2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, 3-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे. कुछ लोगों का बना, कुछ लोगों का नहीं बना, एंड I felt very very grateful. तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, अगर आज मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ, बट अगर 8 साल पहले एकता मैम ने मुझे नहीं देखा होता फेसबुक पे, तो मैं वो भी नहीं कर रहा होता. So every day that I'm achieving something, it is better than where I started off from. And that is मेरा competition मेरे साथ है. And in fact competition भी नहीं रहा अब तो. So मेरा जो है ना, मैं अपनी comparison, मैंने बहुत सारे ग्राफ्स देखे हैं. मैंने मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बड़े बड़े स्टार्स बने हैं. सुशांत को देखो कितना उसने स्ट्रगल किया, कितना बड़ा स्टार बना. फिर मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं जो धीरे धीरे, सब हर बंदे की अपनी अपनी एक जर्नी होती है. आप अपने आप को अपने कंटेम्पररीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं it's a cycle, no? You're on a high, then you're on a low, then you're on a high. Some people make it quicker, some people make it later, but everybody makes it. So I guess you have to be better than what you did yesterday. You're so sorted. This is amazing. Super. पता नहीं sorted हूँ कि नहीं, but ठीक है, चली जा रहा है. I've been hearing to you very closely, and the way you have put the entire TV films and journey and everything, you sound very sorted, which is very cool. Which is very very cool. आसानी हमारी छोटी सी वीडियो की दुनिया में ही हम साइक आउट करते रहते हैं. So I was actually listening to you very patiently. Yeah, you need to at least जहाँ हो जो है पहले उसको, और उसके बाद जो भी है. So this is. हाँ, मतलब देखो, जो वो बोलते हैं ना कि आपको जो मिलना है वो आपको मिलना ही है.
जो सो कुछ चीजें जो है वो यूनिवर्स पे भी छोड़ देनी चाहिए. ट्रू. आपकी 4 बहनें हैं तो घर में हालात तीन 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 बाबा, तीन, चार नहीं चाहिए. सॉरी 3 बहनें हैं तो घर में इज्जत कितनी थी? तीनों बहनों की बिल्कुल एकदम गुलामी करनी पड़ती थी या कुछ चलती भी थी? विद 3 सिस्टर्स के कारण क्या घर में हालात क्या थे? 1% की भी इज्जत नहीं थी मेरी. मेरी अभी भी नहीं है. मैं क्या बताऊं, मतलब कि ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी है मेरी. अभी लॉकडाउन में मैं यूएस गया था, तो मतलब मुझे ना जो सबसे पीछे वाली जो डिक्की में जो 2 चेयरें होती है ना कार में, हाँ. जिसमें बच्चा भी बैठ सकता है, वहां पे 6 फुट 1 इंच के इंसान को बिठा के लेके जाया जाता था. मतलब कोई जीरो इज्जत है. कोई नहीं, तू है होगा स्टार बॉम्बे में या अपने 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 इंस्टाग्राम पे होगा, घर पे तो तू सबसे छोटा ही है. सो I've been blessed that I have 3 sisters because तीनों बहुत ही different personalities हैं, हाँ. और तीनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, और हाँ. तीनों बहुत ही अलग टाइप का प्यार और अलग टाइप का जो है डांट और वो सब मेरे को मिलती है उनसे. So I think I've been very blessed to have 3 elder sisters. So आप imagine कर लो, 3 बड़ी बहनें और सबसे छोटा मैं, तो कितना प्यार मिलता होगा. हाँ, प्यार वही मैंने बोला, प्यार तो बहुत मिलता होगा, सबका लाडला. और बट हाँ वही है कि दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 2, दीदी नंबर 3, अभी अभी पूरे और क्या. So, Karan, how are you in your personal life? I mean, as in, are you a very intense person, very emotional person? Are you मतलब which bracket do you keep yourself emotionally? I think I'm a little I'm a sensitive person. I've realized that, जो कि मैं पहले realize नहीं करता था, but people who in my life they've made me realize that I'm a sensitive person. आप सोचो कि आप आप पंजाब में बड़े हो रहे हो, आपकी 3 बड़ी बहनें हैं, और आप your dad has made it by the time you were born, and he's made it from nothing. He left his home when he had nothing, and my mother on the other hand has also done the same thing. And they both of them have made it from nothing. और आप पैदा हो जाते हो, और हमारे घर में ना वो विरासत वाला सीन नहीं है. So my elder sister is a doctor. My second sister is in psychology. My third sister has done 2 MBAs and she's well settled. तो एक वो प्रेशर बहुत सॉलिड था हमारे ऊपर, कि स्पेशली मेरे ऊपर, कि ये भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ बन के दिखाना पड़ेगा. और वो होता है ना कि यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी दिस. तो वो आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कर्ब कर देते हो. being that child who has to, सारा प्रेशर आपके ऊपर ही है ना. So I think वो कहीं ना कहीं, and my friends and all also the same, so they have also, so वो भी वही वाले responsible. So I think now I'm a little more relaxed. पहले मेरे अंदर वो बहुत था कि यार नहीं ये this is time pass, this is not resulting into anything. Now I think started enjoying life a lot more. Taken a more relaxed stance towards a lot of things. But I guess I'm quite a private person, sometimes reclusive as well, but nevertheless a very happy and happy person. Can you spend an entire day all by yourself, मतलब without getting jittery कि मैं अकेला हूँ? Yes, I can. Okay. I think it is also very important for a person to spend time alone. Alone, आप alone नहीं होते, आप अपने आप के साथ होते हो. आपका एक subconscious mind होता है जो आपको जिसके साथ आपको बैठना बहुत जरूरी होता है. So I totally recommend that people spend some time with themselves, with thinking about your things, thinking about what you want, thinking about what your happiness is. क्योंकि आप लाइफ में ना बड़ी सारी चीजें लोगों के हिसाब से करना शुरू कर देते हो. You are expected to be a particular type of son. You are expected to be a particular type of brother. You are expected to be a particular type of boyfriend. You are expected to be a particular type of boss. And sometimes आप realize करते हो कि यार आप सब कुछ ना उन pressures में करना शुरू कर देते हो. आपका behavior change होता है, and you end up becoming a different person. So true. So true. And then so this is why you need to spend some time with yourself and ask yourself कि भाई तेरे को क्या चाहिए, तुझे क्या अच्छा लगता है, उस पे फोकस हो रहा है कि नहीं.
यू नो, आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड या एक अच्छा बॉस या एक अच्छा यू नो को एक्टर बनना, यू नो, क्योंकि आपको बोला जाता है ना कि ओ माय गॉड, यू नो, सो ही सो स्वीट, ही डिड दिस, तो आपको लगता है कि यार अच्छा मेरे को भी करना चाहिए, यू नो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड देन ओवर अ पीरियड यू रियलाइज कि भाई पर ये तो मैं हूं ही नहीं. So true. So it is very important to spend time with yourself. You know, the other day I was watching this movie, तो मेरे को नाम नहीं याद रहते. तो हम लोग इतना अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं, गोल्स रखे होते हैं, ये फिटनेस गोल, ये सोशल मीडिया गोल, ये मतलब ये वाला शो, वो वाला शो, इसके लिए ऐसे, इसके लिए वैसे. एंड वो एक मूवी थी, उस बंदे को ना टर्मिनल कैंसर पता चलता है. एंड उसको रियलाइज होता है कि उसके पास 6 महीने हैं सिर्फ जीने के लिए. सो मैं वो मूवी देख नहीं रहा था, वो कोई somebody else was watching that movie, but I saw that one scene where he realizes that he only has 6 months. तो उस रात को ना मैं बैठ के सोच रहा था कि यार आज की डेट में, अच्छा मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है. मैंने रियलाइज किया कि यार अगर मेरे पास अभी एग्जैक्टली 6 महीने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा. तो सडनली ना इतने सारे गोल्स जो है ना क्योंकि वो सुपरफिशियल लगने लग पड़े. इतनी बुरी तरह से पूछ, अगर आप सोचो ना कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, तो आपको सही में पता चल जाएगा आपको करना क्या है. माय फर्स्ट थिंग वाज कि भाई सबसे पहले तो जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर उसके बाद ये ट्रैवल करो, फिर उसके बाद ये खरीदो, वो खरीदो, और फिर आई रियलाइज कि यार ये मुझे तो मतलब अभी जो मेरे गोल्स हैं वो तो मैच नहीं कर रहे. तो मेरे ट्रू गोल्स तो यही है, फिर बड़ी सिंपल लाइफ है. यू नो, इफ यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन कि भैया आपके पास टाइम ही इतना है और इतने पैसे हैं, क्या करोगे, आपको रियलाइज होगा कि गाड़ियां, ये घर, ये लाइफस्टाइल, ये तो सब आपने एम ही कर रखा है. असली खुशियां तो आपको तब मिलती है जब आप अपने आपको ऐसे प्रेशर में डालते हो और आपको रियलाइज हो जाता है कि भैया आपकी इंपॉर्टेंस तो ये है. मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मुझे बस ट्रैवल करना है. सो इट वाज सो क्लियर, सडनली वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्या क्या करना है, और मेरे को रियलाइज हो गया कि यार यही है, दिस इज राइट. मतलब बेसिकली अगर ऑनेस्टली सोचा जाए तो हमने अपनी जिंदगी में खुद ही भसड़ मचा रखा है, भर भर के भसड़ मचा रखी हुई है. अरे यार उसने ये कर लिया, अरे यार उसने वो कर लिया. और मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं यार भाई उसकी इतनी टर्नओवर होगी, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने खानी तो वही बटर चिकन खाना है, वही दारू पीनी है, वही रोटी खानी, कैसे आप लोग आके बैठे हुए हैं. Yes, you should be very ambitious because you have one life. But think about it. What makes you happy? People have forgotten what makes them happy. वो किसी और की जिंदगी जी रहे हैं. मतलब कि लोगों को दिखाने के चक्कर में आप अपनी सोल की, अपनी पूरे प्रेजेंस की, अपने एग्जिस्टेंस की, अपने नीड्स की लंका लिटरली लगा रहे हो रोज दिन. करेक्ट ना. अगर आप अभी सोचो कि भाई मेरे पास 6 महीने जीने के लिए, आपके 90% गोल्स जो आपने बना रखे हैं ना, ये EMI, ये घर, ये गाड़ी, ये वो, ऐसे सब खत्म हो जाएगा बिकॉज उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, या मुझे अपनी मम्मी के लिए ये करना है, मुझे अपने डैड के लिए ये करना है. बस यही रह जाता है जो सच होता है. आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू दिस एक्सरसाइज. ये मैंने इन्वेंट की है. मैं सोच में पड़ गई. Even I actually got into the thought. Yeah, it's so true. है ना? बड़ा मजा आएगा करके देखना. And we are psyching out for no reason. I know, I'm telling you. अरे करियर का ये, करियर का वो, ये वाला बैग, वो वाली गाड़ी, सब खत्म हो जाएगा. You'll be like इन सब चीजों से तो कुछ मिलना ही नहीं है. So true, really so true. Wow, touch wood. That's such a mentally happy space to be there. I'm sure इसको सुनने के बाद all those people who were going crazy for some reason and no reason, if they pick up anything from this podcast, I'm sure बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. I really want to tell all the listeners right now कि I have also at this point of time, as I'm talking to Karan, I have also gotten into a thought mode, which is वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए. सोच में पड़ती नहीं, मैं पड़ गई. एक्चुअली मैं पड़ गई सोच में, क्योंकि मैं सुबह से काफी बहरा रही थी किसी बात पर. I was also बहराई on something. And then I suddenly think, why hearing you, I was like, मैं क्यों बहरा रही हूँ, जाने दो यार, ठीक है. सही है ना, ऐसे होना चाहिए. Totally. So Karan, all those people जो मतलब बहुत सारे तुम्हारे लोग हैं जो कहते हैं करण तो साडा जलंधर से था, करण ने ये किया, करण ने वो किया. यू नो, अच्छी बात यह है कि सब किया है और अपनी खुशी और अपनी मर्जी और फुल इज्जत के साथ किया. फिल्म्स में किया, अच्छे रोल्स किए. अभी डॉली की टीम में भी बढ़िया मजेदार रोल, बड़ा अच्छा रोल. मुबारका में अच्छा रोल, अच्छे लीडिंग वाले 1920 फिल्म. यू डिड फिल्म्स, OTT में दिल्ली तो है, एंड देन यू हैव डन रियलिटी शोज, डांस शोज, सब कुछ किया. तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी को रोल मॉडल मान लो तो उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करो.
एंड बहुत सारे लोग करते हैं एंड so what do you want to say all those boys like you जो probably अभी 23-24 में बैठे हैं, शायद जलंधर में हो, शायद चंडीगढ़ में हो, और वो कह रहे हैं हम भी बनेंगे करण कुंद्रा. What are those, मत बताओ, what are the don'ts from your entire journey? What are your don'ts you want to tell them? ये यार अगर कोई विशाल या कोई अमन या कोई कुणाल बरेली जलंधर या नागपुर में बैठा और वो ये सोच रहा है कि मुझे करण कुंद्रा बनना है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि भाई तू विशाल बन, तू अमन बन, तू कुणाल बन, तू करण कुंद्रा मत बन. क्योंकि करण कुंद्रा अगर सोचता उस टाइम पे कि मुझे शाहरुख खान बनना है या मुझे सुशांत बनना है या मुझे आमिर खान बनना है, तो वो करण कुंद्रा भी नहीं बन पाता. So I am saying that it involves a lot of hard work. It involves a lot of dedication. But आंखें खोल के सपने देखो, बड़े सपने देखो और अपनी जर्नी पे फोकस करो. अगर आपका ये गोल है कि मुझे एक 25 करोड़ की फिल्म करनी है, तो हो सकता है कि 20 साल के बाद आप एक 25 करोड़ की फिल्म करो, लेकिन आप वो 20 साल अपने खराब नहीं कर सकते हो. आज अगर आप एक YouTube की वीडियो भी कर रहे हो ना, जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं. So I would just say that just work hard and everything is possible. Ask the universe for anything you want and the universe will give you more. There's a lot of abundance. Affirmations and affirmations. Absolutely. मतलब आंखें खोल के यार किसी को अपने आप को ना कर्ब मत करने दो. Don't let negative people bring you down. It is always about being positive. I think the glass is always half full. It's never half empty. अगर आपने ये पकड़ लिया ना, तो आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे और आप खुश रहोगे. And I'm telling you, with happiness attracts more happiness. More happiness attracts more fame. More fame attracts more money. So just एंड में घर पे आके दाल चावल ही खाने हैं ना यार. कभी कभी बटर चिकन खा लेंगे, थोड़ी अच्छी दारू पी लेंगे, बट कोई इशू नहीं है. जिंदगी उसमें भी प्यारी है, ढूंढ के देखो तो. बट वही मतलब आप डेस्टिनेशन के लिए अपनी जर्नी नहीं ना बर्बाद कर सकते. और बहुत लोग कर रहे हैं. अरे बहुत लोग कर रहे हैं, भयंकर कर रहे हैं. मतलब अब योर वर्ल्ड इज तो मतलब आई सी इट, आई एम टेलिंग यू पर्सनली. यहाँ पर हमारी तो मतलब रेडियो की ही हमारी छोटी सी दुनिया है. हम उतने में ही मतलब हमारी इतनी सी भी दुनिया में इतना पैरानोया है. And sometimes I told you, Nana, I started my morning with a buzzard thought where I was paranoid about something and I was texting, ये क्या है, ये no, and actually I am thinking कि क्या buzzard है, क्यों मैं अपना दिन बर्बाद कर रही हूँ. जो होगा देखा जाएगा. हाँ होगा. अरे जो भी होना है वो तो होना ही है ना, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते. तो आप जो है वो buzzard ही एंजॉय कर लो. बस एंजॉय करो, उसका भी अपना थ्रिल है, और उससे निकलोगे तो उसका मजा आ जाएगा अपने आप. डेफिनेटली 100%. So what is one track, Karan? That's my last question to you. एक गाना जो जीवन का मंत्रा you think, वो गाना जब भी सुनते हो, अपनी गाड़ी में सुनते हो, घर पे सुनते हो, for all your listeners right now, your one track. This is all your प्यारा track. I'm a music person, so ऐसा कोई एक ट्रैक तो नहीं हो सकता. I love listening. I can't, that 1 hour that I spend, or whatever time that I spend alone in the gym with myself is all about music. And music is something that it's these are all vibrations. और ये सब ना आपको बहुत ही काम करती हैं, आपको और इंस्पायर करती हैं. So I think music is very important. So it depends. So again, at the end of the day, I love Punjabi music, I love Hindi music, but it depends on my mood, So बहुत सारे ऐसे गाने हैं. I can't name one. I hope you listen to radio sometime. I do listen to your show as well. वही time होता है ना मेरा. I think radio is very, very important. It was so much fun talking to you, Karan. But I really want to tell this all to the listeners कि अक्सर जब भी इतनी लंबी चौड़ी conversation होती है तो हम सुनते रहते हैं. There's a lot of fun in this thing, but I think this is the first time in a conversation I am also, as I say, I'm also taking away something. मैं कुछ लेके मैं कुछ सुन के जा रही हूँ, and I have heard you in a very different perspective. I've seen you on screen. I've seen you around also. Yes. In this podcast, I have met Karan, जो मैंने सोचा नहीं था.
आई वॉन्ट टू एडमिट। मैं उस करण से मिली हूँ और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो ये सुनेंगे वो उस करण से मिलेंगे, एक बहुत अलग करण से मिलेंगे, बहुत अलग कॉन्वर्सेशन से मिलेंगे। करण जिसको उन्होंने पर्दे पे देखा है, हर तरह की चीजें करते हुए देखी हैं, बट दिस साइड ऑफ योर्स, this sorted side of yours, this beautiful side of yours is just amazing, and this is going to inspire a lot of people. Full power to you, Karan Kundra, one of the beautifulest, मतलब अंग्रेजी की टांग तोड़ रही हूँ, beautifulest लगा conversation ever. I am also going to take away. Thank you so much. I had a blast talking to you, Akriti. That was so much fun. Thank you so much. Thank you, Karan. Lots of love. Chak de fatte. See you around soonest in Red FM studios. See you soon. Definitely. Bye. Bye. Thank you. Bye. So guys, that was your very own Karan Kundra up close and personal in a very, very different avatar. And he spoke so much about his life, his journey, and so much about his struggles and his entire phase, how it has been. I hope you love this podcast. I hope आपको सुन के बहुत अच्छा लगा. I hope you are going to shower a lot of love to this one. So my favorite as well. And for now, this is time that I say bye to you. I'm going to see you on the TRP show soonest. Bye-bye. TRP. The TRP show. TRP.